further discussion on the deep dissection of the neck. So in the deep dissection we will study the various vessels of the head and neck. So the most important vessel of the head and neck, I hope you can orient this place. So yesterday you were taught about this thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के ईदर साइड यहाँ पे क्या पड़ा होता है, कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पे, कैरोटिड ट्राइंगल. कैरोटिड ट्राइंगल इज़ अ पार्ट ऑफ एंटीरियर ट्राइंगल. अब आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, आई होप आपको विजिबल है. सो व्हाट इज़ दिस वेसल in the carotid triangle? Obviously this is carotid, common carotid artery. This is common carotid artery. So now what are the structures of the carotid sheath? You tell me. These are the common carotid artery, the vagus nerve and the internal jugular vein. Most medially क्या होता है, common carotid artery, and then comes the internal jugular vein, and then comes the vagus nerve, which is present in between the artery and the vein posteriorly. So now I am showing you the vessels again, but on the left side, as you can see, right side. As you can see, this is the which artery? Common carotid. This is which vein? Internal jugular vein. And this is which nerve? Vagus nerve. ठीक है. अब जो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, they are enclosed in the carotid sheath. Now this common carotid artery now will divide at the upper border of the thyroid cartilage. Yesterday I also told you that this is the thyroid cartilage. Thyroid cartilage क्या है? वो जो larynx का major cartilage होता है. ठीक है. So you can see at the upper border of this thyroid cartilage, this common carotid artery is dividing into external carotid and internal carotid. अब आपको कैसे पता चलेगा ये external है ये internal है? जो internal carotid artery होती है, it does not give any branch in the neck, while you can see that some branches are arising from this artery. So neck में जो artery branches देती है, that is external carotid artery, और जिससे कोई branch arise नहीं हो रही, you can clearly appreciate that no branch is arising from this artery. So this is internal carotid artery. Clear हो गया? So next is this artery. This is internal carotid artery. Now internal carotid artery, I told you it begins at the upper border of the thyroid cartilage. Upper border of the thyroid cartilage, just opposite between, इसके opposite क्या है, third और fourth vertebra है, कौन सा? cervical. third और fourth cervical vertebrae, उनकी intervening disc के level पे this internal carotid artery is arising. ठीक है. और जा रही है, it enters the cavity by which foramen? You tell me. It enters the cavity via norma bizalis से किस उसमें एंटर करती है? कैरोटिड केनाल. फिर वो आगे ओपन किस में करते हैं? फोरामेन लेसरम में, जिसके थ्रू वो क्रेनियल कैविटी में एंटर करता है. क्लियर है? सो ये सप्लाई किसको करेगी? ऑब्वियसली इसकी सप्लाई वहाँ पे, तो इट विल सप्लाई दी बोन एंड दी meninges. ठीक है. तो जो एंड ब्रेन ऑल्सो. तो इसके जो इट इज़ इन इट्स कोर्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. दैट इज़ द सर्वाइकल पार्ट जो आपको नेक में नज़र आ रहा है, जहाँ ये कोई ब्रांच नहीं देता. ठीक है. दूसरे पेट्रस पार्ट, वो पार्ट जिसमें ये पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में ये ट्रेवर्स करती है. थर्ड पार्ट आ जाता है कैवर्नस पार्ट. कैवर्नस साइनस में जब ये इसका जो कोर्स होता है. ठीक है. एंड लास्ट पार्ट इज़ द सेरिब्रल पार्ट, जो कि किसके रिलेशन में आता है? बेस ऑफ ब्रेन. नाउ नेक्स्ट वेसल इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे? ये कौन सा ट्राइंगल होता है? आई टोल्ड यू दिस इज
कैरोटिड ट्राइंगल. एंड विच लेवल, जिस लेवल पे ये डिवाइड हो रही थी, दैट इज द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज. और वर्टिब्रल लेवल क्या था, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्री की इंटरवीनिंग डिस्क के लेवल पे ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो अराइज करती है. ठीक है. इट रन्स अपवर्ड्स, ये ऊपर जा रही है, इट रन्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स द मैंडिबल एंड विद इन द पैरोटिड ग्लैंड ये जाके डिवाइड कर जाती है इनटू 2 ब्रांचेस. कौन कौन सी ब्रांच, सुपरफिशियल टेम्पोरल, दिस यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरी. ठीक है. Now next we come to the branches of the external carotid artery. So yesterday you were being taught about this gland. This is which gland? This is thyroid gland. So the first artery जो arise करती है external carotid artery से, and it is going downwards towards the apex of the pyramidal lobe of the thyroid gland is the superior thyroid artery. So first branch of external carotid artery is superior thyroid artery. The next branch is this, that is going towards the tongue. I hope it is visible to you, that is going towards the tongue. This is lingual artery. This is lingual artery. Then comes this artery. I hope you can see this artery. This is the facial artery. ठीक है. Superior thyroid, lingual, facial. Clear? Then ये वाली artery, ये जो rise कर रही है, this is posterior auricular. Then again this artery, this is occipital artery. थोड़ी सी टूट गई है ये. This is occipital artery. Clear हो गया. And one more, that is ascending pharyngeal, that arises from its medial side. ठीक है. Next is the terminal branches. The terminal branch of this is given within this gland. The gland जो आप पढ़ चुके हो, that is parotid gland. Parotid terminal branches क्या होंगी? One is the maxillary artery and another is the superficial temporal artery. Is it clear? ठीक है. So again, superior thyroid artery, lingual, facial. There are 3 anterior branches. कौन कौन सी? superior thyroid, lingual और facial. 3 anterior होगी और 2 posterior. 2 posterior कौन सी? posterior auricular और occipital. एक medial, that is ascending pharyngeal. और 2 terminal कौन सी? maxillary and superficial temporal. The next artery we are going to discuss is this artery. This is the subclavian artery. Now you can see on this is the which side of the body? This is the left side and this is the right side of the body. Left subclavian artery कहाँ से arise करते हैं? It directly arises from the arch of aorta. ठीक है. अब आप अगर राइट साइड की बात करें तो यू कैन सी दैट राइट साइड पे दिस इज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी. ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे 2 में डिवाइड कर रही है. सो ऑन द राइट साइड दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक दैट इज डिवाइडिंग इनटू कॉमन कैरोटिड एंड subclavian, while on the left side we can see only direct branches. This is common carotid and this is subclavian. Now this subclavian artery is the chief artery of the upper limb. Considerably it is also supplying the head and neck. ठीक है. अब now I have told you on the right and the left side. So now you can see which is this artery. This is the subclavian artery. And you can appreciate this muscle. This is muscle. This muscle is scalenus anterior. ठीक है. स्केलेनस एंटीरियर. जैसे हमने बहुत सारी वेसल्स की हैं जो एक मसल के थ्रू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. सिमिलरली जो ये सबक्लेवियन आर्टरी है इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय वन मसल. मसल का नाम क्या बताया? स्केलेनस एंटीरियर. दिस मसल डिवाइड्स दिस सबक्लेवियन आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स जो स्केलेनस एंटीरियर के मीडियली है. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट.
जो स्केलेनस एंटीरियर के पोस्टीरियर है दिस इज सेकेंड पार्ट, जो स्केलेनस एंटीरियर के लेटरल है दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, मीडियल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट एंड लेटरल पार्ट। सो नाउ फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस क्या क्या हैं? एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस अराइज कर रही हैं। जो सबसे मीडियल ब्रांच है जो ऊपर जा रही है, दिस ब्रांच, दिस इज वर्टिब्रल आर्टरी। फर्स्ट पार्ट की कौन सी ब्रांच है? ये वर्टिब्रल आर्टरी। एक आर्टरी यहाँ से नीचे जा रही है, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स द थोरैक्स। ये हो गई इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। कौन सी? इंटरनल थोरैसिक। अब इंटरनल थोरैसिक के बिल्कुल ऑपोजिट ये अराइज करिए, दिस इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक। कौन सी है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक। अब थायरोसर्वाइकल कल आपको बताया था कि जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है कौन सी होती है? ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। थायरोसर्वाइकल किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सो इंफीरियर थायराइड आर्टरी ये हो गई। दूसरी, यू कैन सी दिस ब्रांच इज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। कौन सी है? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एंड ऑल्सो यू कैन सी these branches arising from here, this is transverse cervical artery। ठीक है। नाउ सबक्लेवियन आर्टरी के पोस्टीरियर साइड पे अगर हम देखें तो एक और आर्टरी अराइज कर रही है पोस्टीरियरली। दिस आर्टरी कौन सी है? कॉस्टो सर्वाइकल आर्टरी। कॉस्टो मतलब रिब्स। ठीक है। रिब्स पीछे से आते, कहाँ से ऐसी इनकी ओरिएंटेशन होती है तो उसके पास होती है। कौन सी आर्टरी? कॉस्टो सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है। समटाइम्स द थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी gives origin to the dorsal scapular artery. It can be occasionally present. Also the artery which we have discussed, this is the costocervical trunk. ये जो आर्टरी है ये दो में डिवाइड कर जाती है, दैट इज सुपीरियर इंटरकॉस्टल एंड डीप सर्वाइकल आर्टरी। आई होप क्लियर हो गया। दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी। फर्स्ट पार्ट की ब्रांचेस वर्टिब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, इंफीरियर थायराइड आर्टरी और पीछे तरफ आ गया दिस इज कॉस्टोसर्वाइकल ट्रंक। सॉरी, दिस इज इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, दिस इज थायरोसर्वाइकल वर्टिब्रल आर्टरी। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द वेन्स। दिस इज इंटरनल जगुलर वेन। यू कैन सी दिस इज विच वेन? कैरोटिड ट्रायंगल में कैरोटिड शीथ का कंटेंट दूसरा कौन सा होता है? दिस इज इंटरनल जगुलर वेन। नाउ इंटरनल जगुलर वेन बिगिन कहाँ से होती है? हमने क्रेनियल कैविटी में पढ़ा था एक साइनस। कौन सा? सिग्मॉइड साइनस। सिग्मॉइड साइनस की डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है इंटरनल जगुलर वेन। ठीक है। अब देन यू कैन सी विच बोन इज दिस? दिस इज क्लेविकल। क्लेविकल के दो एंड्स होते हैं, दिस इज द स्टर्नल एंड। जो स्टर्नल एंड है इसके डायरेक्टली पीछे आप देख रहे हैं कि ये वेन आ रही है। यू कैन सी वन वेन इज कमिंग दिस, एंड ये कौन सी वेन है? दिस इज इंटरनल जगुलर वेन। अब इंटरनल जगुलर वेन और सबक्लेवियन वेन मिलके एक वेन बनाते हैं, दूसरी वेन। उसका नाम क्या हो गया? ब्रेकियोसिफेलिक वेन। ठीक है। नाउ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ द internal jugular vein. These are the inferior petrosal sinus within the cavity, cranial cavity. Now common facial veins जो यहाँ face से आती हैं। ठीक है। common facial veins. Next another is the lingual vein, pharyngeal vein, superior thyroid vein. You can see these are the superior thyroid vein. lingual vein इधर से आएगी lingual artery के साथ। ये सब किस में ड्रेन करें? अल्टीमेटली they all are draining into this internal jugular vein. नाउ ब्रेकियोसिफेलिक वेन क्या बताई थी मैंने? कैसे बनते हैं? इंटरनल जगुलर और सबक्लेवियन मिलके ब्रेकियोसिफेलिक बनाते हैं। ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड पे बन रही है वैसी राइट साइड पे भी बनेगी। ठीक है। नाउ राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन्स दे विल जॉइन टू फॉर्म सुपीरियर वेना केवा, एंड अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा कहाँ ड्रेन करती है? इनटू द हार्ट। हार्ट में भी कहाँ? इन द राइट एट्रियम।
Now next we are going to discuss is the cervical sympathetic chain, cervical part of the sympathetic trunk. Now the cervical parts of the right, you can see this is the sympathetic chain. I hope आपको नज़र आ रही है. ये कॉमन कैरोटिड थी, इसके नीचे बिल्कुल ये कौन सी है? दिस इज़ दी cervical part of the sympathetic chain. This is the cervical part of the sympathetic chain. It is situated on each side of the cervical part of the vertebral column. You can see this is the cervical part of the vertebral column. तो इसके vertebrae की each side पे present होती है. ठीक है. अब now just behind the carotid sheath, या कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसके बिल्कुल पोस्टीरियरली प्रेजेंट आप देख सकते हैं. ये सिंपैथेटिक चेन इन कॉमन कैरोटिड के बिल्कुल पोस्टीरियरली है. मतलब कैरोटिड किस में होती है? कैरोटिड शीथ में. अब इसका फॉर्मेशन कैसे होती है? इन द नेक द पार्ट ऑफ द ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय द फाइबर्स. कौन से सेगमेंट से बनती है? सेगमेंट्स T1 to T4 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. T मतलब थोरैसिक, ठीक है. एंड देन असेंड टू द नेक. नाउ अब हम अगर रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियरली मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरनल कैरोटिड है, कॉमन कैरोटिड, ये किस में होती है? कैरोटिड शीथ में. और आपको यहाँ पे एक और वेसल नज़र आ रही है, ये देखो, ये कौन सी वेसल है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी. तो ये भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आती है, इसके सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के. अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियरली आता है सबसे पहले प्री वर्टिब्रल फेशिया. ठीक है. उसके बाद आपको ये मसल दिख रही है, दिस इज लॉन्गस कैपिटस एंड लॉन्गस सर्वाइसिस मसल. ठीक है. उसके बाद क्या आ जाएंगे? ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ कौन से वर्टिब्रे? लोअर 6 वर्टिब्रे. ठीक है. ये आ गए इसके पोस्टीरियर रिलेशंस. अब हम गैंग्लिया की अगर बात करें तो क्योंकि सर्वाइकल नर्व्स 8 होती हैं तो हमारे पास 8 सर्वाइकल गैंग्लियंस होने चाहिए. बट देयर आर ओनली 3 गैंग्लियंस ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द गैंग्लियन. सिर्फ हमारे पास 3 सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं. कौन कौन से? सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर. अब हम सुपीरियर सर्वाइकल, नाउ अब आप यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा दिस इज़ द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन. अब इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 गैंग्लियंस एंड इट इज़ स्पिंडल शेप. कैसा है ये? स्पिंडल शेप होता है और इसकी लेंथ अराउंड होती है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. नाउ दिस वॉज सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन. ठीक है. इसकी क्या शेप बताई मैंने आपको? इट इज़ स्पिंडल शेप्ड. ठीक है. नाउ इट इज़ लाइंग बिलो द स्कल, ऑपोजिट कौन सा सर्वाइकल वर्टिब्री? सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री. एंड इट इज़ लाइंग बिहाइंड दी कौन सी शीथ है? ये कैरोटिड शीथ. एंड इन फ्रंट ऑफ ये फेशिया, ये जो थिक फेशिया कौन सा होगा? प्री वर्टिब्रल मसल्स के पहले प्री वर्टिब्रल फेशिया. नाउ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 cervical ganglion, upper 4 cervical ganglion. Now next is the middle cervical sympathetic ganglion. Now this middle cervical sympathetic ganglion, ये जो सेंटर में it is very small, पर यहाँ पे जो middle cervical sympathetic ganglion है यहाँ अप्रिशिएट नहीं हो रहा है इस स्पेसिमेन में. ठीक है. जनरली अगर हम बात करें तो ये लाई कहाँ करता है? इट लाइज इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द C6 वर्टिब्री. पर यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा. इट कैन बी प्रेजेंट sometimes but in a very small amount, like just like small 2 tubercles, 2 or more tubercles. Now next we come to the inferior cervical sympathetic ganglion. Now again you can see this is inferior cervical sympathetic ganglion. It is formed by the fusion of 7th and 8th cervical ganglia. Now it is sometimes fused with the first thoracic ganglion. First thoracic ganglion के साथ ये फ्यूज़ हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन. ठीक है. सो ये कौन सा था? सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन एंड इन्फीरियर. मिडल वाला इज एब्सेंट ओवर इन दिस स्पेसिमेन बट समटाइम्स इट कैन बी प्रेजेंट, मे बी लाइक 2 tubercles जस्ट लाइक. सो इन्फीरियर वाला जो है इट इज़ फ्यूजिंग विद द फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रे टू फॉर्म द सर्वाइकोथोरैसिक
गैंग्लियन। अब ये सिचुएटेड कहाँ होता है? जस्ट इन फ्रंट ऑफ द C7 वर्टिब्री, ठीक है। जो ये सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन है, इट एक्सटेंड्स इनटू द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब। इट कैन एक्सटेंड, यहाँ पे फर्स्ट रिब आ जाएगी T1 के लेवल पे, फर्स्ट रिब, ठीक है। Now some clinical regarding this cervical sympathetic trunk, that if there is any injury to this trunk, it may produce Horner syndromes. ये जैसे इसके features होते हैं ptosis. What is ptosis? It is the drooping of the upper eyelid. Then meiosis. What is meiosis? It is the constriction of the pupil. Anhidrosis, loss of the sweating on that side of the face. Then enophthalmos, that is retraction of the eyeball. Loss of reflex, that is ciliospinal reflex. What is this syndrome को बोलते क्या है? Horner syndrome, ठीक है। तो Horner syndrome can also be caused by a lesion within the CNS anywhere above the T1 segment of the spinal cord, जो involve करते sympathetic fibers. So that was a little about the clinical of the cervical sympathetic chain, and also regarding the various vessels of the head and neck. If there is any doubt, we will check. Thank you so much.